Tipramotani Chaitok Mumbai, Kumulungo Luajizak, Hakotor BGP ne Ajufang Zepi Nadani Lukutum Pandawa, Magic Funugai Mandia Hasti BGP, Dang Shalomotor Sten Tung Nokla, Book Sawana Dang Shawbachawe, Kok Naraknani Nanka, Hakotor BGP ne Ajufang Zepi Nada. Pine 2023 Bidan Chabachong Badite, Bilas Committee Election Nobus Kangotone, Tangsala BGP Jonjati Morjane Shakthar Mumbai, Kumulungi Motor Sten Tung Noklawa, Luajizak Manikaisa Kotor Lukutum Panda. Lukutum Pandawa, Manjaknani Bagai, Hasteo Fai Shokwaizak, Hakotor BGP ne Ajufang Zepinada, Piaba BGP Jonjati Morjabai Luajizak, or Lukutum Panda ne Shaljas Halne Shukangno, Lukutum Panda Klaimani Shalot, Dukmali Hatio Kevo Halnok Pyogiman Glakne, Rezaka Dam Rokmong, Aboni Logilogi, Kevo Tipra Sharok, BGP ne or Lukutum Pandawa, Tangiman Glakne, Kamini Lukurong Sikri Shokro Klaizak Mani Koktoma, Paitago. Tipramotani Chaitok Mumbai, Kumulungo Luajizak, Hakotor BGP ne Ajufang Zepi Natani Lukutum Pandawa, Magic Funugi Manlia Hasti BGP, Tang Shalo, Motor Sten Tung Nokla Book Sawano, Dang Shawbasaway, Kok Naranani Nanka, Hakotor BGP ne Ajufang Zepi Nada. Lukutum Pandani Puila Bukak, Lamjok Shokmani Kok Naraka, BGP Jonjati Morjane Ajufang Vikas Deb Burma. Abo Haikeno, Dang Shao Kok Naraka, Montri Shantana Chakma, Montri Rampoto Jamatia Tei, MP Rebodi Tripura. जेपी नड्डा की नरेंद्र भाई मोदी की सबाई के अनेक धन्यवाद তিনি বিষয়ংখা বিসি কুদুংমা জরাতৈ সিনি ত্রিপুরা রাজ্যও আগে যারা কংগ্রেস এবং সিপিএম দীর্ঘ বছর রাজনীতি খাই থাকা সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক লামা বুরলিয়া শিক্ষাবো সুশিক্ষিত খাইলিয়া রাংরিবো করি খাইক্লাঙ্কা বিখরা খাইক্লাঙ্কা হাইতেইনো চিকিৎসাनि ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যনিবো বাহাইনো সাকহামনিবো বাহাইনো ডাক্তার কাহাকেবো পর রলিয়া হাইনি বাঙিনো মুংসা করিখা খাকা এমনকি তুই পর্যন্ত শুনে খানি ক্লাংলিয়া কিন্তু চিনি সরকার ফাইমানি পরে 2018 পরে কাকে চিনি আর তোমাক লাইকা পুইলা সিকাংনো जों কেন্দ্র যে শিক্ষানীতি ত্রিপুরা ভাগে শিক্ষানীতি খাইখা বনি লগে লগে जों শ্যামা 125টি বিদ্যাজ্যোতি যোজনা প্রত্যেকটা ও সারা ত্রিপুরা 125টি স্কুল ন जों আধুনিকরণ খাইখা বনি লগে লগে তাবক 24 খান একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল কাইসারডে বোর্ডিং হাউস যেটা কিলাও চলাই তঙ্গ বহাইনো দে বোর্ডিং হাউস ইয়া रेसिडेंशियल हस्टेल गनां खालायनि हिबाङैनाय जोंनि केन्द्रीय मन्त्री बरम गोनां अर्जुन मुन्डाजी गसाइखा जों ताबक एकलब्य मडेल बहक तमा जोंनि बर'नि बाङै ब आसले एक स्कुलाव 480 जना बोरै 240 ला 240 परेबो आरनिबो जोंनि बरक दफानि साराय कायसान आरने परेनाय ओ स्कुल खांखे दिल्ली बोर्डनि इंग्लिश मीडियम हिंदी के खलाइजाक उन्नत धरনের शिक्षा कायसा क्लास मात्र 30 जन के परजागो अमहाके जों आइगेवा मात्र कायथा जों फाइतो बखते 21 खान का ताबक अर्थात 71 बছর 3टा जों ताबक 4 বছর 18 खान बनि परे आगे निते काइनै सांसान खलाइजाक सह खायके 21 खान ताबक आरनि बिसुङो काइबा ताबक चलै तंगु 19 खान काके नक तांजागै तंगु ताक बसखां सेप्टेम्बर मासनि पाइथाग रक नभेम्बर मास रौ काके 4-5टा नक पाइनाय सिनि बसाना आरो फोरोंनाय आरनि तो क्लास 6 नि सिनिसे जे जातिनो तिसाना काके शिक्षा न काहाके खलाय नांगो आगेनि सीपीएम नि फ्रा काके 40 বছর रंबो 40টা हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल 15 বছর ধরে মাসাফানো পাসংলিয়া নীল চিনি बरगनो चिनी एडीसी इलाकाओ सुन लेबार सनाविक लंका सीपीएम सं हम लोग जहां भी बाहर खड़े हैं हमारा निवेदन है आप जब आ जाइए मैदान के अंदर कोनो जगह मेसिन लागो जागो तंग अब आगामी दिनाव जों टारगेट नावै सामुं तंग तंग लामानि बागै टारगेट नावै सामुं तंग नेशनल हाईवे যেখানে একটা মাত্র জাতীয় সড়ক 44 ন্যাশনাল হাইওয়ে তো মানে আ জায়গাও 8টা জাতীয় সড়ক
আগামী দিনও তাই বসিনি কয়েকটা জাতীয় সড়ক ঘোষণা তাই সামুং নাই তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে হামকারিনি বাগাই ত্রিপ্রাসানে হামকারিনি বাগাই বিজেপি রক যেটা সামুং তাংতঙ্গ जों বুঝিনা নাংনাই এই যে সামুং এই যে উন্নয়ন আবো যদি বন্ধ খাগে চিনি বাগাই তাইবো ক্ষতি নাই তো কাজেই जों যেভাবে রাজনীতি খাইয় যারা গৃহহীন বরণ जों প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে বরণ খিদাই নক করে বন যেভাবে जों শৌচালয়নি ব্যবস্থা খাই দङ যে বরণ নগ গ্যাস আগে কানেকশন করে আবনো जों রি দङ যেভাবে নগ তুই ঋণের ব্যবস্থা খাই দङ এবং তুই ঋণের কানেকশন আবো ফ্রি নগ নগ যেটা চিনি হর ঋণের ব্যবস্থা কারেন্ট আবো যেভাবে जों কানেকশন না जों রি দङ ফ্রি আবো রিমাইকে সোলারনি মাধ্যমে এবং পুরা গ্রামীণ এলাকা চিনি কামি এলাকানো তুই जों যেভাবে পরিকল্পনা আগেও जों নুখা চিনি বিসি রগ ভিলেজ কাউন্সিল রগ রাং করে চিনি সরকার বিজেপি সরকার ফাইমানি পড়ে जों অর নুগুই দङ চিনি অর্থমন্ত্রী তাই উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মাজি ফাই দङ চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে ভিলেজ কাউন্সিল রগ যাতে ডাইরেক্ট রাং মানাতে जों নীতি আয়োগ থেকে চিনি মানে অর্থ কমিশন থেকে जों রাং ঋণের ব্যবস্থা খাই রেখা তো কাজে আগামী দিনে তাইব जों সংবিধান সংশোধন খাইমানি বিসিংতই जों এডিসি এবং চিনি বরণ তাইব এম্পাওয়ারমেন্ট খেলা নাইও আং অনেক কক নারুক জাখা তাইব অনেক কক সারাই দङ তো কাজে এই যে চিনি নাইমুং অ যে হামক্রাই নি নাইমুং অমনো जों যদি जों চিনি কামি রগ ফাইনাই যে বিভিন্ন ইলেকশন দङ আরও जों যদি চিনি বিজেপি সরকার বিজেপিনি যদি ইয়াগো কলাই আহিকে অমহাই যারা বুলাই তগলাই 25 বছর তমনি পরে সিপিএম হাই দল আঞ্চলিক দল যারা দিল্লিও থাঙ্গি তুবুরি ফেমিয়া আবহাই দল ইয়াগো जों যদি ক্ষমতা রিরিখাইকে চিনি বাকে ক্ষতি নাই जों ডাইরেক্ট যেহেতু বিজেপিও দङ ডাইরেক্ট নরেন্দ্র মোদি জি ভাই জেপি নাড্ডা জিনো जों তুবুই মানো जों থাঙ্গি মানো হিংকে নরক ওয়ান সুকদি তামনি जों বুইনি বিসিংতই जों থাंनाय ডাইরেক্ট जों থানাय जों সানাय চিনি বিসিংগো ফাই দङ আর অনেক দল দङ নরক নুখনা দিল্লিও অর তংখা হিংকে কক কতর কতর সাও নরেন্দ্র মোদি নং চিনি আনো সিনিয়াখো হিনি সাও আবার চিনি জেপি নাড্ডা জি ফাইকা হিংকে ফ্লেক্স ব্যানার সাপুগৈ ওয়েলকাম হিনি সাও আবার তামোবা তামো আবার নরক ওয়ান সুগৈ মানো Aboni yagulo dang shao kok narakha hastini deputy CM जिष्णु टेपर माते हस्ती बीजेपी ने आजुफंग राजीव भट्टाचार्य हम लोग जहाँ भी बाहर खड़े हैं हमारा निवेदन है आप जब आ जाइए बात मैदान के अंदर। लेकिन ये पहले बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट खुमलुंग में आ रहा है। उनका सबसे पहला भाषण ये त्रिपुरा प्रदेश में हमारा जनजाति त्रिपुरा भाई लोग के साथ भाई बहन के साथ सामने होगा। इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम चाहते हैं कि आप लोग को सुने उनको। त्रिपुरा में अगले सामने और क्या होगा, क्या हो रहा है, नड्डा जी बताएंगे। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग कृपया मैदान में आ जाइए, थोड़ा गर्मी सहन करिए, क्योंकि इतिहास बार बार नहीं बनता है, एक बार ही बनता है। मंच पे उपस्थित मंत्रीगण एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मेरे सामने मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर विश्व के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने यात्रा शुरू करेंगे त्रिपुरा के इलेक्शन के लिए। ये खुमलुंग से
खुमलुंग सबका है, सब तिपलासा का लिए है खुमलुंग, सबको सुनना चाहिए। और थानसा हमको भी चाहिए, हमको भी थानसा चाहिए अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए। हम चाहते हैं कि एडीसी और शक्तिशाली बने। सीपीएम टाइम में एडीसी को जो पैसा देता था उससे डबल हमने दिया है। ये कोई झूठ बात नहीं है, ये बात है मैथमेटिक्स का बात, 2 और 2 4 ही होता है। शेयर ऑफ टैक्सेस हमने डबल कर दिया है। और जो रिलीज हम स्टेट गवर्नमेंट से देता है एडीसी को, वो 56% हमने बढ़ा दिया है। किसी का मन में है कि बीजेपी एडीसी में नहीं है, सरकार नहीं है बीजेपी का, इसलिए हम लोग एडीसी को हम पैसा नहीं देते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है सीपीएम टाइम में जितना दिया इससे डबल दिया हमने। कोविड था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चिंता करता है कि किसका गवर्नमेंट एडीसी में, हम चिंता करते हैं हमारे त्रिपुरा के लिए। हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और एडीसी एक साथ काम करके त्रिपुरा का उन्नति करे। हास्तिनी डिप्यूटी सीएम जिष्णु देबबर्मा ककनारगै टंगमानि कचारनो लुकुथुम पांडाव थांगै सगैया हागतर बीजेपी नि आजुफां जेपी नड्डा दांशाव फाइ सबाइकेनो हागतर बीजेपी नि आजुफां जेपी नड्डा न पाकुरिते कुताइ चुमरुबै रेखा बीजेपी जनजाति मोर्चा नि आजुफां विकास देबबर्मा ते हास्तिनी डिप्यूटी सीएम जिष्णु देबबर्मा आबा हाइकेनो रियांग मुसामुं मोसाजाक वानिश नामजाक सिकलिबुरिनि मांगथं याफारि रेखा हास्तिनी त्रिपुरा हामक्राइ मन्त्री रामपद जमातिया आबनी यागुलो दांशाव ककनारखा हास्तिनी कचा मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देवते हास्तिनी मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह। मेरे साथ एक बार सब लोग, ये धूप कुछ नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं सुन रहा था धूप के लिए आपको बधाई दिया जा रहा है, आपने कोई कष्ट नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, पहली बार त्रिपुरा में, वो भी खुमलुंग आपके बीच में आए हैं, जनजातियों के बीच में आए। सब एक साथ हाथ उठाइए, ऊपर मुष्टि बंद करिए, हाथ ऊपर उठना है, खुलना नहीं है। खुलेगा तो सीपीएम जाएगा अंदर। सब उठाओ हाथ ऊपर, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जेपी नड्डा की जय, जेपी नड्डा की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय। सबाइके अनेक अनेक धन्यवाद। आज मैं यह बोलने के लिए नहीं आया हूं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बोलने के लिए अपने तरफ से बार बार बोल रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को मिला है। और साथ ही साथ आज त्रिपुरा के धरती पर हमारे यशस्वी राष्ट्रीय सभापति आदरणीय जेपी नड्डा जी, और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 18 करोड़ की जो मेंबरशिप की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के लगातार जीत, जिन्होंने सोचा था उत्तर प्रदेश में हम जीत नहीं सकते, सबको धूल चटा दिया। जिन्होंने सोचा था 10 तारीख के बाद मोदी सरकार को हिलाएंगे, उत्तराखंड से हमारे सरकार ने हिला दिया, गोवा से हिला दिया, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से हिला दिया। यह जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है, और वो आज महान व्यक्ति हमारे बीच में है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश के तरफ से और जनजाति मोर्चाओं के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह महोदय,
जो काम 2018 में हम लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया था, उसके आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देववर्मा महोदय, केंद्रीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक महोदया, प्रभारी हमारे विनोद सोनकर जी, और यहाँ बैठे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, एमडीसीगण और दूर दूर से आए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और लड़ाकू कार्यकर्ता भाई बहन, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। इस धूप में आप लोग यहाँ एक साथ समागम हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं 2-4 शब्द में खत्म करूंगा। मैं इस भूमि में बहुत आदर के साथ दोबारा जेपी नड्डा जी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये खुमलम का भूमि है, ये महाराजा वीर विक्रम किशन माणिक्य का भूमि है। इस भूमि को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 से लगातार जनजाति के लिए जैसे विकास कल्याण हो रहा है, एक समय इस राज्य में जनजातियों को वोट बैंक के नाते व्यवहार किया जाता था। कम्युनिस्ट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जनजाति ने देखा जो बरोमुरा के नाम हताई कोतुर हो गया, गंडा छरा के नाम गंडा तुईचा हो गया। आज उस दिशा में इस सरकार कामकारी कर रहे हैं। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के नाम से एयरपोर्ट हो चुकी है और बहुत सारी काम हम लोगों ने किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से सुनना चाहूंगा और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं कहता हूं, जो आप लोग इस धरती को एक नया दिशा देने के लिए तैयार बैठे हैं और आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच में हैं, हम इनको सुनना चाहते हैं। और मैं साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ अपना विषय रखने के लिए बुलाना चाहता हूं और इतना बोलते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। भारत माता के जय, बीजेपी जिंदाबाद, जनजाति मोर्चा जिंदाबाद। पांडाव दांगशाव ककनारखा हाकोतर बीजेपी ने आजुफांग जेपी नड्डा कक सानानि थांगै हाकोतर बीजेपी ने आजुफांग जेपी नड्डा शाखा जनजाति लुकुरंगनि हामग्रानि ताइकिसा मुं ओंखा भारतीय जनता पार्टी तै हाकोतरनि मंत्री बक्रक नरेंद्र मोदी जनजाति लुकुरंगनि हुकुमुमु कुमुतै रां थंनो कुचुगति सावै दंग बीजेपी हाफां हनै। राष्ट्रीय ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स, इसकी स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। यह खोलने का काम भी किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह भी समर्पित किया है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता था। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता था। पिछले साल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ये घोषणा करते हुए भी अच्छा लगता है कि भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगभग 46-66% लोगों के स्थान से उसको हटा दिया है और आपको मुख्य धारा में जीने का एक मौका मिल रहा है। उसी तरीके से 27 सेंटर्स ट्राइबल रिसर्च सेंटर के खोले गए हैं, जिसमें से 50% सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वो विकास की कहानी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजाति भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, आज हम कह सकते हैं कि वह आक्रमण और वो वायलेंस, वो जो आपके ऊपर अत्याचार होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में और माणिक शाह जी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से वामपंथियों के द्वारा
जो गुंडागर्दी चलती थी, आप लोगों को तंग किया जाता था, उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। उसी तरीके से एकलव्य स्कूल, जिसमें 270 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट कर लें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो जनजातीय भाइयों को 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था, आज 2,500 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। जनजातीय उपयोजना जो 21,000 करोड़ की थी, वो आज 86,000 करोड़ रुपए हो गई है। जल जीवन मिशन में अगर 6.5 करोड़ लोगों को पानी दिया जा रहा है, तो 1 करोड़ 20 लाख जनजाति लोग हैं जिनको पानी जल का व्यवस्था की जा रही है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में जहां 11 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, तो उसी 11 करोड़ में 50 लाख परिवार आदिवासी भाई हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 1 करोड़ 70 लाख आवास आते हैं त्रिपुरा में, तो उसमें से 40 लाख आवास यहां पर हम जनजाति भाइयों को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो उस 11 करोड़ रुपए में 3 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि में, किसान जो हैं वो आदिवासी हैं देश भर में। ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परंपरा, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो वह मोदी जी की सरकार ने की है। आज जनजाति के गौरव को बचाने के लिए जो जनजाति लोगों ने देश के लिए अपना योगदान किया है, उसको एक तरीके से म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का काम किया है। काशी गारो आंदोलन, बीजू आंदोलन, कौल आंदोलन, मणिपुर आंदोलन, दुर्गावती आंदोलन और रानी कमलावती का जो सैक्रिफाइस था, उनका जो योगदान था, इस पर म्यूजियम बना करके इसको भी काम में लाने का काम किया, तो वह हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, अगर हम सीपीएम की सरकार की बात करें तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और 450 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया जी हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो, और फिर चाहे वो बांसुरी हो, पद्मश्री दे करके जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके इलाके में सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था? आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक साहब का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने अंधेरगर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं
इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं तो आपके माध्यम से 19 की 19 जनजाति भाइयों और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की प्रसाद को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिष्णुदेव, बिप्लब देव और ये तमाम मंच पर बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस धूप में आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ, मैं समझ सकता हूं कि आप कितने कष्ट में हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि आदमी तो छोड़ो, कैमरे को भी छाया दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी तौलिया रखा जा रहा है। मैं गर्मी और धूप समझ सकता हूं, मैं पत्रकार भाइयों की भी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन ये निवेदन करने जरूर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपकी चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपको मुख्य धारा में शामिल करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपरा, विकास, किसानों की चिंता, आपकी परंपरा को बचाने का काम ये कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नेतृत्व हमें सबको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जनजाति क्षेत्र में किए गए कार्य को गहराई से समझें, जानें और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा। फियाबा थंगनक लाबुक साव कॉकनारक मानी बागै हाकुतर बीजेपी ने आजुफांग जेपी नड्डा ने आशिक मोखां हामथालिया हाइफानो सातुंग तुंगमानो तुंगु होन्यावै आसालो हाकुतर बीजेपी ने आजुफांग जेपी नड्डा ने कॉकनारक मानो खनाका लुकुथुम पांडाव मानजाकनाय गोबां कुक लुकुरक खुमुलुंग निशिमी प्रवीण कक्थुम चिनी खरां।